Hello students, welcome back. So today we are going to continue our chapter Rotational Dynamics from the subject Physics of Standard SYGC Science. And today we are going to cover the major topics which are related to vertical circular motion and moment of inertia, which in short term we call it as a MI. So what we have seen in the last lecture. So let's do some small recap. So in the last lecture, we have seen the things which are related to banking of road. So in case of banking of road, we have seen the most safe speed as well as what would be the upper limit if the road is banked, what would be the lower limit of the speed if the road is banked. Okay. So max to max kitna speed hona chahiye with the angle of banking at some angle. Okay. At the same time, minimum kitna speed hona chahiye with certain angle of banking, right? So with help of this angle of banking, it is very easy for me to use this particular formulas in actual real life application. Okay, जहाँ पे मैं banking of road use कर सकता हूँ, correct? So that we have seen that, as well as उसके बाद हमने देखा था there are uniform circular motion. Okay, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? एट कांस्टेंट स्पीड अगर एक मास और एक पॉइंट मास अगर एक पर्टिकुलर आई कैन से ऑर्बिट में या सर्कुलर आई कैन से सरकमफेरेंस में अगर वो घूम रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. वी कॉल्ड एज अ यूसीएम. ओके, सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज हैविंग द उसका जो वेलोसिटी होता है दैट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. ओके, सो हमेशा याद रखना यूसीएम इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन. ओके, अगर उसका एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली इट्स अ नॉन जीरो एक्सेलरेशन. ओके, सो आप बोलेगे सर यूनिफॉर्म सर्कुलर है मतलब उसका स्पीड नॉट आई कैन से नॉट से स्पीड, इट्स अ वेलोसिटी इज कांस्टेंट. उसका मैग्नीट्यूड भले ही सेम रहेगा बट द डायरेक्शन इज कीप्स ऑन चेंजिंग after every point on the circumference of a circle. So its direction is changed. That's why it's an accelerated motion. Okay, so that's why we call uniform circular motion possess non-zero acceleration. Okay, this might come in your JEE, so इसको mark करके रखना. Okay, then we have seen a pendulum. Pendulum मतलब क्या? एक circular, let's say I have a point mass. एक छोटा सा मेरे पास point mass है, उसको मैंने string से एक rigid I can say surface को उस पर tie कर दिया, right? And the other end where the bob is attached, that is free to move. और वो पर्टिकुलर बॉब को मैंने एक सर्कुलर मैनर में कंटिन्यूस और आई कैन से कांस्टेंट स्पीड से मैं उसको अभी रोटेट कर रहा हूँ. सो व्हेन इट इज मूविंग इन अ कांस्टेंट स्पीड, व्हाट इज हैपनिंग? इट इज फॉलोइंग द सर्कुलर मोशन. एंड व्हेन इट इज फॉलोइंग द सर्कुलर मोशन, ऑब्वियसली उसमें क्या हो रहा है? एक यूसीएम प्रोड्यूस हो रहा है एंड दैट शेप इज क्रिएटेड लाइक अ कोन. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कोनिकल पेंडुलम. ओके, नॉर्मल पेंडुलम कैसे होता है? इट्स नथिंग बट अ टू एंड फ्रो मोशन विच इज मूविंग इन अ टू डायरेक्शन. ओके, बट कोनिकल पेंडुलम में इट इज सराउंडिंग और इट इज moving in a 3D. Okay, so in that case we will get a three-dimensional, I can say, the movement. Okay, so that we call it as a conical pendulum. ठीक है. Now today we are going to see, so that we called it as a horizontal circular motion, but at the same time there is a vertical circular motion also, right? In case of horizontal circular motion, yes, gravity is acting, but the speed gonna be same. ओके, जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? मेरी कांस्टेंट होगी अगर मैं उसको सेम सर्कुलर पाथ में उसको मेंटेन करना चाहूँ तो. बट दैट इज नॉट सेम इन केस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन. तो आप बोल रहे होगे कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है सर? देखो बहुत ईजी है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन. फर्स्ट इज कंट्रोल्ड vehicle circular motion such as a giant wheel or similar games. In this, the speed is either kept constant or not totally controlled by gravity. Okay, जैसे हमने giant wheel देखे होंगे फेरीज में, राइट? तो वहां पे एक मशीन होता है नीचे, ओके, जो मोटर होती है. थ्रू दैट मैं पर्टिकुलर वो giant wheel घुमा रहा हूँ. ओके, सो देर इज नो
much need of gravity. Okay, but एक दूसरा होता है जिसमें that circular motion is totally controlled by a gravity. Okay, इसका मतलब क्या, मैंने अगर मेरे हाथ में एक नॉर्मल स्ट्रिंग है, उसको मैंने एंड पे एक पत्थर, अगर मैंने उसको टाई कर दिया और मैं उसको अगर जोर जोर से घुमा रहा हूँ, द मोमेंट मैं फोर्स लगा रहा हूँ टिल द टाइम इट इज कंट्रोल्ड, बट द मोमेंट आई एम लूजिंग इट, मैंने पोजीशन मतलब उसको फोर्स देना बंद कर दिया, सो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो घूमेगा घूमेगा, बट एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम it will lose its control and it will completely controlled by the gravity. Okay, so that kind of, I can say, circular motion ये यहाँ पे आता है. Okay, so that we called as a vertical circular motion which is controlled by gravity. In this case initially supply is necessary, जैसे मैंने आपको बोला initially मुझे इसको घुमाना होगा, okay, at the lowest point, and then towards the entire kinetics is governed by the gravitational force. तो ये कैसे होगा, क्या होगा, let's see in details. Okay, so आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, simple, ये particular there is a derivation how to define it. Okay, so the derivation name is the point mass undergoing vertical circular motion under gravity. Okay, so the point mass, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे black में dot, actually that is nothing but my point mass is there. Okay, so ये point mass जब भी एक particular रोटेशन में, या उसको मैंने अगर थ्रेड से टाई किया है, सो ये पर्टिकुलर एक रोटेशन या सर्कुलर मोशन या सर्कुलर पाथ ये फॉलो करेगा, पर एट द सेम टाइम एट एवरी पॉइंट, जैसे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, ओके, देन डी पॉइंट है, एट एवरी पॉइंट वी हैव टू चेक व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, और वो ग्रेविटी के टाइम, वो पॉइंट के टाइम जो ग्रेविटी है उसका, उसके टेंशन मतलब जो थ्रेड का टेंशन होता है उसमें क्या फर्क आ रहा है, एज वेल एज उसके वेलोसिटी में क्या फर्क आ रहा है, राइट. So all this we can find with help of this particular derivation. Okay, so सबसे पहला case one. Okay, so mass tied to a string. Okay, उसके बाद मतलब क्या, there are two cases. First is mass tied to a string, second is mass tied to a rod. Okay, so पहला हम देखेंगे mass tied to a string. अगर मैं यहाँ पे string ले रहा हूँ और यहाँ पे मैंने यहाँ पे bob attach कर दिया है, तो first initially जैसे मैं, इन्होंने पहले बोला है कि फर्स्ट उसको मैं मैन्युअली घुमाऊंगा, बट जैसे ही वो अपने सर्कुलर मोशन में आ जाएगा देन आई विल लीव इट, देन उसके बाद पूरा कंट्रोल किसके पास होगा, ग्रेविटी के पास होगा. ओके, नाउ फर्स्ट इट इज द वेट mg which is vertically downward, okay, and which is constant. So इसमें assumption करने हैं, not assumption exactly, the things which are already there like mg, मतलब उसका वेट हमेशा क्या होगा, नीचे ही होगा, towards ground. So its weight mg vertically downwards which is always constant. Okay, so ये first मैंने ले लिया. Second, the force due to the tension along the string directed along the string and towards the center. तो ये टेंशन जो भी होगा मेरे स्ट्रिंग में, राइट, टेंशन मतलब इट्स काइंड ऑफ अ फोर्स ओनली, जो स्ट्रिंग कर रहा है, किस पे कर रहा है, ये बॉब पे एक्ट कर रहा है. ओके, तो वो भी क्या होगा, हमेशा along the direction of the string होगा and always along towards the center होगा. Okay, its magnitude changes periodically with time and location. अभी ये जो बॉब है उसका हमेशा क्या होगा, जो आई कैन से उसका जो वेलोसिटी होगा एज वेल एज ये स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा, दैट ऑलवेज गोइंग टू बी चेंज पीरियोडिकली विथ टाइम एंड लोकेशन. Okay, so हमेशा ये क्या होगा, चेंज होगा. So there are two main things, which is first is the velocity and another one is the tension. Okay, tension in the wire. तो ये दोनों चीजें हमेशा होगी, A point, B point, C point, D point पे हमेशा चेंज होगी. So वही हमें फाइंड आउट करना है इन दिस डेरिवेशन. Okay, so first both weight mg and force due to tension ta are downwards. Okay, मतलब ये आपको कहाँ दिख रहा है कि mg और ta दोनों डाउनवर्ड कहाँ पे है, yes, you are absolutely right, which is point A. So ये point A पे मैंने क्या किया है, मेरा mg और मेरा जो टेंशन है वो क्या है, टोटली डाउनवर्ड. ओके, इन दिस केस द रिजल्टेंट इज यूज्ड ओनली एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके,
रिजल्टेंट का मतलब क्या है, देखो ये एक वेक्टर हो गया, इसके पास mg मतलब उसके पास उसका मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है। एट द सेम टाइम मेरे टेंशन के पास भी क्या है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन भी है, करेक्ट। सो ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो ऑब्वियसली उसका रिजल्टेंट क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। ओके, बिकॉज दिस वेक्टर विल गेट एडेड विद दिस वेक्टर बिकॉज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। सो देयरफॉर उन्होंने क्या बोला है, इन दिस केस द रिजल्टेंट इज ओनली यूज्ड ओनली एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सेंट्रीपिटल हमेशा टुवर्ड्स सेंटर काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल हमेशा अवे फ्रॉम द सेंट्रल काम करता है, करेक्ट। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये टी ए एंड एम जी दोनों मिला के मेरा सेंट्रीपिटल का क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ओके, सो सेंट्रीपिटल का मेरा इक्वेशन क्या है, दिस इज द इक्वेशन in terms of linear velocity. Okay, so therefore mva square divided by r, where va is the speed at the uppermost point. So मैंने ऐसा एक assume किया कि मेरा जो va रहेगा that will be my uppermost point. So मेरा ये सबसे top में रहेगा. Okay, so here I can say my va will be there. Okay, and ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, इसका मतलब क्या, ये थोड़ा सा इसमें वेक्टर और एक ऐड हो जाएगा and the resultant will be look like this. Okay, so this is the resultant of TA and mg, but ये resultant अभी क्या कर रहा है, दोनों सेंटर में काम कर रहे हैं. Okay, so therefore I need to add those, but at the same time ये सेंटर में और कौन दे रहा है, मेरा काम कर रहा है, मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है, right? So in indirectly this mg and TA is actually contributing my centripetal force. Okay, so ये मुझे इक्वेशन मिल गया. ओके, बट ऐसे बोला गया है फॉर मिनिमम पॉसिबल स्पीड एट दिस पॉइंट, मतलब आपने देखा रहेगा कि एट अ सर्टेन पॉइंट ये जो बॉब रहता है वो ऐसे घुमाने घुमाने के बाद एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ पे यहाँ पे ज्यादा कुछ टेंशन मेरे वायर में नहीं होता. क्यों? बिकॉज एट दिस पॉइंट द बॉब विल डायरेक्टली फॉल लाइक दिस, बॉब सीधा नीचे आ जाएगा. ओके, बिकॉज यहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगी इन एज कम्पेयर टू टेंशन. और अगर स्ट्रिंग में टेंशन होगा ही नहीं तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसका टेंशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा. दैट्स व्हाई दे हैव गिवन फॉर मिनिमम पॉसिबल स्पीड एट दिस पॉइंट द टीए विल बी इक्वल टू जीरो. ओके, सो यहाँ पे स्पीड इतना कम होगा कि मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, ऑलमोस्ट जीरो ले सकता हूँ. तो मेरा टेंशन क्या होगा मेरे स्ट्रिंग में, टी ए इक्वल टू जीरो. ओके, आपको समझ रहा है ये टेंशन क्या होता है इन द स्ट्रिंग? देखो सिंपल है, जितना अगर आप ये पॉइंट पे अगर मेरा बॉब स्टेबल पोजीशन में है, मतलब मैं उसको घुमा नहीं रहा हूँ, तो क्या होगा, ये वायर में एक ऐसा टेंशन प्रोड्यूस होगा कि जो इसके वेट को बैलेंस करे. ओके, सो जब ये इसके वेट को बैलेंस कर रहा है, जस्ट इमेजिन करो अगर ये बॉब का वेट ज्यादा होगा और मेरा जो वायर है वो बहुत थिन है, थिन थ्रेडेड है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दिस वायर विल गेट ब्रेक. व्हाई? बिकॉज द mg इज मच मोर ग्रेटर देन द टेंशन ऑफ द वायर. ओके, तो मुझे बॉब ऐसे सिलेक्ट करना है और मुझे वायर ऐसे सिलेक्ट करना है ताकि दोनों एक दूसरे को संभाल सके. ओके, सो वेट मेरा अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कॉल कर रहा है तो ऑब्वियसली मेरा टेंशन ऑन द वायर हैज टू बी इक्वल, तभी क्या होगा, ये पर्टिकुलर बॉब स्टेबल पोजीशन में रहेगा. अगर ये टेंशन कम है और वेट ज्यादा है देन बॉब विल स्लो 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 विल कम डाउन बिकॉज वायर एक्सपांड हो रहा है एंड वायर में टेंशन वो आई कैन से होल्ड नहीं कर पा रहा. ओके, एट द सेम टाइम, हाँ, सो दिस इज वन ऑफ द केस. ओके, सो इसलिए हमेशा ये टेंशन इन द वायर, सो वायर का थ्रेड हैज टू बी इतना एडिक्वेट होना चाहिए सो दैट इट विल हैंडल द वेट. सो दैट इज नथिंग बट जो इसको होल्ड करके रखता है एट अ सर्टेन वेट, वो पर्टिकुलर वायर में जो टेंशन क्रिएट होता है उसको हम बोलेंगे दिस टी. ओके, सेम अगर ये पर्टिकुलर बॉब अगर टॉप मोस्ट पोजिशन में आ गया और उसका बहुत मिनिमम स्पीड है, तो ऑब्वियसली क्या करेगा, ये टेंशन इसमें होगा ही नहीं, तो ये बॉब सीधा नीचे आ जाए. ओके, कभी आपने देखा रहेगा कि ऐसे ऐसे घुमाया मैंने एट ऊपर जाके वो क्या हो गया, मेरा बॉब नीचे आ जाता है फटाक करके, राइट? सो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस जीरो टेंशन इन द वायर. सो देयरफॉर एट वी ए इक्वल टू, ओके, दिस वी ए ऑब्वियसली मेरा क्या हो जाएगा, टेंशन विल बी इक्वल टू जीरो. सो एट व्हेन द टेंशन इज इक्वल टू जीरो, तो ये मेरा एंटिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. देयरफॉर मैं क्या करूंगा, ये एम एम विल गेट कैंसिल. ओके, और वी ए आर जी
और उसको मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा, देयरफॉर VA विल बी इक्वल टू रूट ऑफ RG। ओके, सो ये मुझे क्या मिला, मेरा इक्वेशन मिला। किसका इक्वेशन मिला? द स्पीड, ओके, द मिनिमम स्पीड एट पॉइंट A कैन बी रूट RG। Understood? So this is nothing but the equation of my velocity, and the tension in the wire is nothing but TA is equal to 0. So ये दो चीजें मुझे क्या मिली, ये पर्टिकुलर इक्वेशन से, या ये पर्टिकुलर आई कैन से पॉइंट से मिली, ये पर्टिकुलर डेरिवेशन से मिली। ओके, सो ये कब मिला? व्हेन द पॉइंट वाज एट A। अब मुझे क्या फाइंड करना है? अगर मेरा पॉइंट लोअर मोस्ट पोजिशन पे है, विच इज नथिंग बट पॉइंट एट B, विच इज द नेक्स्ट वन। Okay, so the force due to tension TB is vertically upward and the position and opposite to mg. So यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है? Simply ये जो पॉइंट B है ये मुझे अभी कंसिडर करना है। At that point of time the weight is vertically downward, but now the tension is towards the center, which is acting as a towards the centripetal force. ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा मुझे पता है कि वो क्या होगा, अलोंग द सेंटर होगा। ओके, सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द सेंटर, विच इज mr स्क्वायर डिवाइड बाय mv स्क्वायर डिवाइड बाय r। ओके, बट नाउ ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो रहा है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज नाउ दिस टेंशन माइनस इट्स वेट। ओके, तो आपको एक सिंपल बोलूं कि सर ये mg माइनस टीबी क्यों नहीं लिया? देखो बहुत सिंपल है, अगर मैं mg माइनस टीबी लेता इसका मतलब क्या, द वेट इज मच मोर ग्रेटर देन द टेंशन। अगर वेट मेरा ज्यादा ग्रेटर है एज कंपेयर टू टेंशन, इसका मतलब मेरा थ्रेड टूट जाएगा। ओके, इट मींस द थ्रेड इज नॉट कैपेबल टू होल्ड दैट मच वेट। ओके, सो दैट्स व्हाई अगर ये स्ट्रिंग, अगर मेरा इसका टेंशन ज्यादा होगा तो ही मैं क्या करूंगा, ये पर्टिकुलर वेट को क्या कर सकता हूँ, होल्ड करके रख सकता हूँ। Okay, that's why we have to take this tension in the wire has to be greater than to hold this bob at this point. Okay, therefore मैंने कंसिडर किया VB is the point at the lower most point. Okay, so VB मेरा एक यहाँ पे स्पीड रहेगा, उसका मैंने वैल्यू क्या लिया, let's say I have taken the value VB. Okay, and अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। So when the point is at B, मेरा ये बॉब है अगर वो बी पॉइंट पे आ गया, सो ये पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या हो सकती है? सो इक्विलिब्रियम पोजीशन ये हो सकती है, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज वर्किंग एट द सेंटर। ओके, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है टुवर्ड्स दिस, सो देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू द टोटल टेंशन इन द वायर विच इज TB माइनस द वेट विच इज एक्टिंग अलोंग द डाउनवर्ड। ओके, सो सेंट्रीपिटल फोर्स मेरा कहाँ पे काम कर रहा है, सेंटर में। सो सेंट्रीपिटल फोर्स देखो यहाँ पे दिया उन्होंने, सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर डिवाइड बाय r। इन दिस केस द वेलोसिटी इज vb, so therefore mvb square divided by r will be equal to the tension in the wire which is always greater than my weight, therefore tb minus mg will be equal to mvb square divided by r. So this is one of the equation. Okay, while coming down from the uppermost to the lower most point, the vertical displacement is 2r। मतलब उन्होंने क्या दिया है, ये जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो उन्होंने क्या किया है, इसका रेडियस प्लस ये रेडियस, मतलब उसका आप, हाँ, ओके, सो एट द सेंटर दिस इज माय r and this is my r, so therefore the vertical displacement 2r and the lower, sorry, the total displacement is r plus r which is 2r, and the motion is governed by the gravity, and the gravitational potential energy is converted into kinetic energy. Now there is a conversion we have to take into the consideration. Okay, so at this point of time, okay, मेरा क्या होगा, मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट हैज टू बी अ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? बिकॉज आपने देखा होगा कि ग्राउंड से हम जितना ज्यादा एक ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, ओके, जितना ज्यादा उसका हाइट होगा उतना ज्यादा उसका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी वो गेन करेगा। okay, and the moment I will lose that particular object from air,
तो वो क्या करेगा, अपना पोटेंशियल एनर्जी लूज करके काइनेटिक एनर्जी गेन करना स्टार्ट कर देगा। ओके, यू नो दैट राइट। पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या है, mgh। ओके, इसका मतलब mgh, इसका मतलब मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। सो हाइट इज द मेजर, आई कैन से द फैक्टर। तो जितना ज्यादा हाइट होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है, राइट। इसके लिए whenever the object is fall from a very huge height, so उसका इम्पैक्ट भी ज्यादा होता है। ओके, बट वही ऑब्जेक्ट अगर कम हाइट से गिरे तो उसका इम्पैक्ट कम होता है, राइट। सो देयरफॉर मुझे अभी यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, एक तो मैंने इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया, ओके, विच इज नथिंग बट इन टर्म्स ऑफ दिस टेंशन एंड वेट। बट सेकेंड इक्वेशन आई नीड टू फाइंड कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी जो मैक्सिमम थी, जब ये बॉब नीचे आया अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो वो मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन से और कितने अमाउंट में कन्वर्ट हो गई। ओके, सो दैट आई विल गेट फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, so as I told you, the potential energy has to be equal to kinetic energy. Okay, so this is nothing but my PE. Okay, and this is equal to KE. Okay, so potential energy is always mgh. So h यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया था, r plus r, which is nothing but 2r. So therefore mgh, which is nothing but 2r, will be equal to half. अभी यहाँ पे क्या होगा, आपको एनर्जी में डिफरेंस आएगा। क्यों? बिकॉज ये ए पॉइंट पे भी क्या था, मेरा काइनेटिक एनर्जी था। ओके, सो दैट काइनेटिक एनर्जी obviously has to be lesser than the kinetic energy at B. क्यों? बिकॉज यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है बट काइनेटिक एनर्जी कम है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम है बट काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, राइट। सो देयरफॉर आई हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस VB माइनस सॉरी K काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए। ओके, सो मैं आपको इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक कि इन्होंने ऐसा क्यों लिया है, ये ऐसा क्यों करना है। सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू इन डिटेल। ओके, सो यू विल अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। सो देयरफॉर यहाँ पे mgh मतलब सॉरी हाँ mgh विच इज पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, बट काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या था, डिफरेंस था, राइट। सो देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी at B point minus kinetic energy at A point. So final minus initial kinetic energy. So इनसे मुझे क्या मिलेगा, I will get some equation something like this. Okay. So मैंने m सब जगह से कैंसिल कर दिया। Okay. So this 2 I have multiplied with this. So और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4rg और यहाँ पे क्या हो जाएगा VB square minus VA square which came down. Okay. So अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, inserting the value of VA. VA मुझे लास्ट इक्वेशन में मिला था विच इज रूट RG. ओके, होप यू रिमेंबर दैट VA इज नथिंग बट फ्रॉम द लास्ट इक्वेशन द वेलोसिटी एट पॉइंट A इज नथिंग बट रूट RG. ऐसा कभी भी हमने नहीं बोला है कि वेलोसिटी A पॉइंट पे 0 होगा, नो। द वेलोसिटी इन दिस सर्कुलर in this circle has to be minimum at point A and has to be maximum at point B. Okay, so therefore from this I will get the velocity. Therefore अगर मैंने ये VA का वैल्यू which is root RG if I'll place it over here, तो मुझे क्या मिलेगा, VB square will be equal to 5RG, और अगर मैंने उसका स्क्वायर रूट ले लिया तो VB minimum will be equal to root of 5RG. Okay, so at this position, at B position the velocity is always equal to 5RG. At this position the velocity is equal to root RG. So यहाँ पे मेरा रूट RG, ओके, और यहाँ पे मेरा 5RG, बस फर्क खाली इतना ही है। ओके, so this is 5RG and this is root RG. So what I have found, the velocity at this, the velocity at this. At the same time tension at this point is 0. बस मुझे अभी फाइंड आउट करना है कि टेंशन एट B पॉइंट कितना होगा। So for this I need to do some subtraction. Okay, so subtraction किसका करूं मैं, so subtraction I need to do of the point A and B. So दोनों के टेंशन का मुझे क्या करना पड़ेगा, subtraction करना पड़ेगा। Therefore subtracting the equation like mg plus TA will be equal to
this, which is mva square divided by r. Okay, और मुझे पता है कि tb minus mg is equal to mvb square divided by r. Okay, तो simply I will put the value over here, और फिर मुझे क्या मिलेगा, ये पर्टिकुलर इक्वेशन tb को मैं यहाँ पे ले लूंगा. ओके, और एल्स I will do this m divided by r, just right hand side subtraction, मतलब this minus this and then this minus this. Okay, I did it like this because I got two equations. First is this, second is this. So this is the equation at point A and this is the equation at point B. Okay, so therefore मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, simple. If मैं assume कर रहा हूँ कि मेरा tension in the wire अगर थोड़ा सा कुछ बाकी है, right? So what I will get, mg plus ta will be equal to mba square divided by r minus tb minus mg will be equal to mvb square divided by r. So this entity I will cancel with this and this entity I will cancel with this. Okay, so मुझे क्या मिलेगा, simply tb minus ta minus 2mg will be equal to m and r in bracket. Okay, vb square minus va square. Okay, but this I have already found, vb square minus va, which is nothing but 4rg. Okay, so इसको just मैं यहाँ पे अगर मैंने put कर दिया, so what I will get, 4mg. So simply tb minus ta will be equal to now my 6mg. Okay, where I can say vb square minus va square will be equal to 4rg. Okay, so what I will, so अगर मुझे tension at point B find out करना होगा तो मुझे T को यहाँ पे लेके आना होगा, and what finally I will get, the TB will be equal to 6 mg plus TA. So यहाँ पे मुझे ये वाला equation मिल जाएगा. Okay, have you understood? So let me just give you one more. Okay, so I have, what I have did, the potential energy I have equate with the kinetic energy. Okay, so मैंने kinetic energy को यहाँ पे क्या कर दिया, equate कर दिया. So at this point the potential energy is maximum, at this point the potential energy is minimum, at this point the kinetic energy is minimum, at this point the kinetic energy is minimum. But मुझे क्या करना है, potential energy is always between 2 points where h is nothing but in this case r plus r, which is 2r. Therefore potential energy is mg 2r will be equal to kinetic energy of this point is greater than the kinetic energy at this point. So मुझे क्या मिलेगा, half mvb square minus half mva square. अगर मैंने इनको सॉल्व किया, so I will get this equation. मुझे va का already velocity पता है at this point a because I just solved in a previous section. So अगर मेरा va root rg है, then obviously मुझे vb का वैल्यू क्या मिलेगा, root 5rg. Okay, now what I will do, I got one equation, okay, like this, and I got one equation like this. So this is the equation at point a, this is the equation at point b. तो मैंने left hand side को minus किया as well as right hand side को minus किया. So from this equation I got this, which is tb minus ta minus 2mg will be equal to m divided by r in bracket vb square minus va square. Okay, so अगर मैंने ये वैल्यू यहाँ पे डाल दिया 4rg, तो जैसे मैं यहाँ पे 4rg डालता हूँ, so r will get cancel and m into g will be left. So therefore I will get 4mg. So ये 4mg और ये 2mg यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, that will be 6mg. Okay, so if I want to find only the value of tb, तो ta मुझे यहाँ पे लेके आना पड़ेगा and I need to add it. So this will be my final answer for this tension in the wire at point B. So हमें खाली दो चीजें find out करनी है. First is the velocity and second is the tension in the wire. Okay, so at point A, the tension in the wire was 0 because the speed was very minimum and the speed is equal to root rg. At point B, the tension in the wire is maximum at any point, okay, which is 6 mg plus ta, as well as the velocity is equal to root rj, which is the maximum speed. Okay, now let's move to the next, which is the point at C and D, which is at horizontal. So देखते हैं इसमें क्या होगा. Okay, now the force due to tension in the wire is only
towards the center as weight mg is perpendicular to the tension. अभी ये जो फोर्स ड्यू टू टेंशन, मतलब ये जो फोर्स है, ये यहाँ पे जो एक्ट कर रहा है ऐसे, ओके, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या कर रहा है, एग्जैक्टली मेरे mg को क्या है, परपेंडिकुलर है, which is perpendicular to my mg. Similarly here also it is perpendicular to my mg. Okay, so force due to tension is only force towards the center as the weight mg is perpendicular to the tension. Okay, so अभी मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है कि यूजिंग द सिमिलर मैथमेटिक्स जो हमने पहले यूज किया है, सिमिलरली वी विल यूज हियर एज वेल. ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, TC minus TA minus TD, sorry, equal to TD minus TA. So simply what I need to do, so the tension at C point, which is exactly half, okay, the tension at C point, which is exactly half of that of till B. Okay, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, मतलब जैसे देखो पहले मैंने जस्ट आपको जैसे फाइंड आउट करके बताया था. सी हियर यू कैन सी द टेंशन between point A and point B, जब ये बॉब यहाँ से यहाँ आएगा, so at this point the tension was 6 mg, and if the bob is traveling from point A to B and C is the exact in the intermediate or exact in the middle of this point A and B in the path, right? So at this point क्या होगा, मेरा जो टेंशन है वो भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, because the path is 1/2, तो ऑब्वियसली मेरा टेंशन भी क्या हो जाएगा, एट दिस C point has to be 1.2. ओके, 1/2. देयरफॉर अगर मेरा डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट A एंड B अगर 6 है, तो ऑब्वियसली सेंटर में क्या होगा, इट विल बी डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज 3 mg. दैट्स व्हाई उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है. ओके, दैट्स व्हाई दे हैव गिवन इन द डायरेक्ट वन is like the tension TC minus TA or TD minus TA. Okay, so TC minus TA और TD minus TA. तो इनका टेंशन क्या होगा, मेरा 3 mg होगा, as well as the VC equal to VD is nothing but equal to 3 rg. Okay, as well as मेरा क्या हो जाएगा, VC minus A. अभी आप बोल रहे हो सर ये कहाँ से आया, देखो ये बहुत सिंपल है, ये मैंने टेंशन को क्या कर दिया, यहाँ ये साइड लेके आया. ओके, ओके, सो मैंने माइनस कर दिया. एट द सेम टाइम मुझे वेलोसिटी भी पता है दोनों का. ओके, सो वेलोसिटी आल्सो आई विल डायरेक्टली फाइंड इट फ्रॉम दिस इक्वेशन. ओके, सो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली 3 rg मिल जाएगा. ओके, सो वेलोसिटी आल्सो आई विल गेट थ्रू द सेम इक्वेशन. सो बोल रहे हो सर ये 3 rg डायरेक्ट उन्होंने कैसे लिखा, देखो इट इज द सेम थिंग जो हमने जस्ट प्रीवियस सेक्शन में किया था. देखो प्रीवियस में हमने क्या किया था, लाइक दिस वी हैव डिड. ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे TA minus TB minus equal to this, so just I replace this particular value of MVA square divided by R. इसको मैंने जस्ट ये फॉर्म में लिखा है, VA minus VB के फॉर्म में. ओके, because tension TC minus TA will be equal to that of that particular mg, so just I have replaced this, so I got this value which is VC equal to VD equal to 3 rg. So at this point ये C and D point पे my equation is equal to 3 rg. Okay, at this point the velocity is equal to 3 rg. At this point the velocity is equal to root rg. At this point the velocity is equal to 5 rg. Understood? So at this C and D the velocity will be same. Okay, and the tension will be like this, as TC is equal to TD. Therefore अगर मैं TD या TC को फाइंड आउट करना चाहूँ at this point C, so I got this 3 mg प्लस ये क्या हो जाएगा, मेरा TA यहाँ पे आ जाएगा. Okay, so I got this total output from this. Okay, now there is one more thing, we call it as an arbitrary position. Okay, arbitrary position मतलब the force due to tension and weight are neither along the same line nor perpendicular. Tangential component of weight is used to change the speed, and it decreases the speed while going up and increases while coming down. Okay, so इसका मतलब क्या, ये जो पर्टिकुलर चीज है, मतलब ये मैंने पॉइंट एक
ले लिया, लेट्स से मेरे पूरे सर्कल पे अदर देन दिस 4 पॉइंट, तो ये पॉइंट पे मुझे क्या मिलेगा, जो टेंशन है विच इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, ओके, पर टेंशन क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर एंगल क्रिएट कर रहा है, ओके। एट द सेम टाइम मेरा जो वेट है वो क्या होगा, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। सो व्हेन इट इज क्रिएटिंग एन एंगल, सो अगेन वेट का भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा में वो रिजॉल्व हो जाएंगे, राइट। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द एग्जैक्ट स्पीड एट दिस पॉइंट। सो दैट्स व्हाई उन्होंने क्या बोला है कि हम खाली इतना बोल सकते हैं कि जब भी एक आई कैन से बॉब वर्टिकल पोजिशन में ऊपर जाता है, मतलब whenever it is going up the speed is gonna be decreasing, and whenever it is coming from A to B which is vertically coming down at this point, so my speed is increasing। बस हम खाली इतना बता सकते हैं, ओके। बाकी हम इसके बारे में अगर any point on this circular we cannot exactly define the equations, so that's why only at point A, B, C, D we can define the equation of tension as well as the velocity, okay। Understood everyone? Just give me yes or no. Everyone understood? Just give me yes or no in the chat. Okay, बहुत simple है. This usually comes in a what I can say board exam. Okay, because इसका जो process है वो बहुत lengthy है, मतलब there has to be 4 cases जो आपको explain करने हैं. So that's why उनको लगता है कि इसमें 4 मार्क का ये question है, right? So make sure कि आप ये अच्छे से समझो और अच्छे से आप पेपर में लिख दो. Okay, so there has to be 4 section A, B and C, D and this arbitrary position. So this 4 section you have to make sure you are writing it down. Okay, ठीक है. So this is the position, okay, of CD. This was the position of B, okay, and this was the position of my A. So with help of all this we can easily find out the tension as well as the velocity of speed at this 4 position, okay। और ये arbitrary position, इसमें just we can predict कितना है, increasing है या decreasing, okay। Okay, now let's come to a new topic जिसको हम बोलते हैं moment of inertia। Just read out this once, अच्छे से पढ़ो क्या क्या है इसमें quantities और जो analogous to translational motion है। Okay, have you gone through? So these are the quantities, okay, or I can say the entities which are, तो उन्होंने just match किया है कि ट्रांसलेशनल मोशन में हम उसको क्या बोलते हैं, और वही अगर इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन अगर मुझे जाना होगा तो वो क्या होगा। तो सबसे पहले मेरा डिस्प्लेसमेंट जो लीनियर होगा ट्रांसलेशनल मोशन में, और जो एंगुलर होगा मेरे रोटेशनल मोशन में। सो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज ऑलवेज फ्रॉम 0 to 360 डिग्री, उससे ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, whereas this is infinite। सेकेंड, द टाइम फैक्टर विल बी कॉमन फॉर बोथ। ऐसा नहीं है कि एंगुलर के लिए अलग टाइम होता है, नो, देयर विल बी टाइम फैक्टर फॉर बोथ। वेलोसिटी अगेन इट्स अ डिफरेंट, in this case dx by dt, in this case d theta by dt, okay। Again, well, angular velocity is again can be infinite, this is same as that of this, matlab we can increase the speed as much as possible, there is no limitation। Same acceleration also, here it's denoted by a in case of translational or linear motion, in case of angular acceleration it is denoted by alpha, which is d omega by dt, where omega is the angular velocity। Now here the main thing which came into the picture, which is mass, okay। So in translational motion the mass is denoted by m, but in case of rotational motion it is not the mass, it is moment of inertia, okay। So what do you mean by moment of inertia, okay, so वो हम अभी देखेंगे, okay।
as well as there is one more entity which is very important in terms of rotational motion, which is torque. ओके, टॉर्क और यहाँ पे क्या है मेरा फोर्स. तो आपको क्या लगता है कि टॉर्क आपने सुना है कहीं, टॉर्क क्या होता है? फोर्स यू नो राइट, बिकॉज बचपन से हम एक ही सुनते आ रहे हैं, हाँ फोर्स, एफ. ओके, मास इनटू एक्सेलरेशन, बस. बट टॉर्क क्या है? टॉर्क इज नथिंग बट एंटी पैरेलल फोर्सेस. ओके, इसका मतलब क्या? फोर्स हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, वेर एज टॉर्क हमेशा एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होता है. मतलब अगर एक रॉड को मैंने सेंटर में उसको अगर हुक लगा के टाई कर दिया, तो अगर मुझे उसको घुमाना है तो मुझे दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने पड़ते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, तभी वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेरा रॉड घूमना स्टार्ट हो जाता है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज both magnitude of these forces are same but both are opposite, or I can say anti-parallel forces. So anti-parallel forces को ही हम बोलते हैं torque. Okay, और couple of forces को ही हम बोलते हैं torque. Okay, and this torque is important when we are talking about rotational motion. Okay, so rotational motion क्या है? बहुत important है. Okay, so always remember this rotational motion is, in this case the torque is very much important. Okay, but यहाँ पे majorly we will think about what do you mean by this moment of inertia. Okay, so that we will see, but before that you should know all these entities. Okay, yeah, now come to the position. Now आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? लेट्स से दिस इज माय डोर. ओके, ओके, यहाँ पे 3D थोड़ा सा बताना मुश्किल है. ओके, लेट्स से कि आपका ये डोर है, यहाँ पे एक लैच है. ओके, और ये मेरा बाहर वाला ये है. ओके, सो दिस इज लेट्स से माय डोर. ओके, सो यहाँ से बाहर जाना है. ओके, सो अगर मैं डोर को, कभी सोचा है क्या कि लैच हमेशा, या जो उस पे हैंडल रहता है, दैट व्हाई इट इज ऑलवेज एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर एज? हैज एनीवन थॉट ऑफ इट? कभी सोचा है आपने कि ये हैंडल हमेशा एंड पे ही क्यों रहता है? व्हाई द हैंडल इज नॉट ओवर हियर? सो बोलोगे सर यहाँ से थोड़ी खोलना है. सो बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पे ही होगा. ओके, सो एग्जैक्टली करेक्ट, पर यहाँ पे क्यों होगा? सो हैव यू ओवर थॉट इट? सो देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट. ओके, सो ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे मेरे क्या हो गए, हिंजेस हो गए. हिंजेस मतलब जिससे मेरा दरवाजा जॉइंट होता है. ओके, ये पार्ट कभी खुलता नहीं. सो दिस इज नथिंग बट माई हिंजेस. तो ये हिंजेस के एग्जैक्टली अपोजिट में क्या होता है मेरा, ये पर्टिकुलर दरवाजे का नॉब या उसका हैंडल होता है. ठीक है, तो ऐसा देखा गया है कि जितना ये हैंडल दूर होगा, ओके, द मोर द डिस्टेंस इज, द मोर इट इज इजी टू पुल दिस डोर. ओके, जस्ट इमेजिन करो कि आप अपने हाथ से, चलो देखो वहां पे हैंडल नहीं है, लेट्स अज्यूम देयर इज नो हैंडल. ओके, लेट्स अज्यूम देयर इज नो हैंडल, इट हैंडल ओवर हियर. और आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? सिंपल, यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट यहाँ पे मैंने जस्ट मेरा फिंगर लगाया एंड आई एम ट्राइंग टू पुश द डोर. यू विल इजीली पुश इट, आप इजीली उसको पुश कर दोगे. बट थोड़ा सा अंदर लेके आओ, लेट्स से सेंटर. आप यहाँ से दरवाजे को पुश करना स्टार्ट करो. नाउ यू विल, यू आर एबल टू पुश इट, बट थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगेगा. थोड़ा सा और अंदर लेके आओ, लेट्स से 75%. राइट, नाउ यू नीड अ ह्यूज फोर्स टू पुश दिस पर्टिकुलर डोर, जो आप इजीली यहाँ पे ही कर रहे हो. बट नाउ अभी जैसे आप अंदर अंदर, जैसे टुवर्ड्स द सेंटर या टुवर्ड्स द हिंज आप आ रहे हो, आपको फोर्स ज्यादा लगने स्टार्ट हो रहा है. ओके, देखो, देर इज नो चेंज इन द मास ऑफ द डोर. डोर का मास उतना ही है. ओके, बट द मोमेंट यू चेंज द पोजिशन, आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ रहा है. ओके, दिस इज इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन. ओके, ये खाली इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन ही होता है. अभी आप बोल रहे हो कि सर रोटेशनल मोशन में मतलब मास हमेशा चेंज होता है? नो, एक्चुअली देर इज नो मास, देर इज एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया.
ओके, इसका मतलब क्या, देखो अगर मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल रोड पे एक मैंने ब्लॉक रखा है, ओके, सो अगर मैं उसको फोर्स लगा रहा हूँ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, लेट्स से आई एम गिविंग द डायरेक्शन, ओके, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, ये डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, दैट फोर्स लेट्स से मे बी इक्वल टू एफ, ओके, और ये मेरा पर्टिकुलर जो लेट्स से एनी इफ इट इज एनी ब्लॉक लाइक डब्बा और समथिंग, ओके, वो पर्टिकुलर क्या कर रहा है, ये डायरेक्शन में आगे जा रहा है, ओके। तो अगर मैंने उसको सेंटर से भी लगाया, या मैंने उसको ये पॉइंट से लगाया, या मैंने उसको ये पॉइंट से लगाया, ओके, तो जितना मैं फोर्स लगा रहा हूँ उतना ही वो क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, ओके। अगर मैं उसका टॉप व्यू दिखाऊं कि लेट्स से ये टॉप व्यू है, लेट्स से, ओके, तो अगर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, सो माय बॉक्स विल मूव इन दिस डायरेक्शन। अगर मैं ये साइड से फोर्स लगा रहा हूँ तो माय बॉक्स विल मूव इन दिस डायरेक्शन। बट अगर मैंने लेट्स से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो मेरा बॉक्स लेट्स से 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर मूव हो रहा है, ओके। एट द सेम टाइम मैंने ये डायरेक्शन से भी फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, फिर भी मेरा ब्लॉक क्या हो रहा है, 5 सेंटीमीटर ही मूव हो रहा है। सो इन दिस केस माई फोर्स इज सेम, विथ हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो सेम। समझ रहे हैं आपको, मैंने जैसे फोर्स लगाया एट द सेम टाइम मेरा डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। एट एनी डायरेक्शन अगर मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, तो मेरा 5 सेंटीमीटर ही मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मूव होगा। बट दिस इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन। आपने यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, आपने ये पर्टिकुलर दरवाजे को पूरा बंद किया। आपने यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, आपने ये दरवाजे को आधा बंद कर पाए, बिकॉज द फोर्स वॉज नॉट इनफ। जैसे आप थोड़ा सा 75% अंदर लेके आए, ओनली 25% यू आर एबल टू क्लोज इट। सो जैसे जैसे आप अंदर आते जाते जाओगे, उतना कम डिस्प्लेसमेंट होगा। सी, इवन द फोर्स इज सेम, बट द डिस्प्लेसमेंट वेरीज। इसका ही मतलब ये होता है कि इनडायरेक्टली जैसे जैसे मैं फोर्स सेम रखता हूं, तो आइडियली इन केस ऑफ लीनियर मोशन द मास हैज टू बी कांस्टेंट, बट इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन देर इज समथिंग जो ये मास के ऊपर काम कर रहा है, ओके। सो एक्चुअल में यहाँ पे हम मास को कभी भी कंसिडर नहीं कर सकते, ओके, बिकॉज मास इज नॉट ऑलवेज सेम फॉर ऑल द पॉइंट्स। सो इसके लिए ये मास को जो यहाँ पे है, इसको रिप्लेसमेंट करना होगा मुझे कुछ तो, इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन। तो इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक नया टर्म लेके आए, जिसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, विच इज डिनोटेड बाय एम आई, ओके। सो देयरफॉर द मास ऑफ दिस पर्टिकुलर डोर, ओके, इनटू its radius will actually give me the moment of inertia, okay, because जितना ये डिस्टेंस, ओके, ज्यादा होगा, उतना ज्यादा मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करेगा। जितना ये डिस्टेंस कम होगा, उतना मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेगा, कम काम करेगा, राइट। therefore this radius from this particular, or the distance from this particular hinge, plays a very important role in rotational motion. Understood? So therefore फोर्स को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो एक इक्वेशन चाहिए। सो वो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया से निकाल के लेके आया। therefore mass is analogous to an entity called as the moment of inertia, okay, so m into r, we call it as a moment of inertia. In case of rotational motion it is mi, okay, it is not Mumbai Indians, it is मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। आज से आपके दिमाग में mi मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहना चाहिए, ओके, not others, okay. So mi is nothing but my moment of inertia, which is exactly same in case of my force, जो mass होता है, okay. So here you have to remember this. So अभी आप बोलेंगे सर इसको मतलब इसको डिराइव तो करना पड़ेगा कि मास ही मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। yes, absolutely, for that only this derivation came into the picture, okay. So let's see the derivation, जहाँ पे मैं इक्वेट कर रहा हूँ मेरा मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, okay. So small derivation है, जल्दी खत्म हो जाएगा, okay. So let us consider the object to be consisting of n particles, masses of m1 m2 till mn. So let's say कि ये मेरे
n नंबर ऑफ पार्टिकल से एक रिजिड मेरा एक बॉक्स बना हुआ है, एक मेरा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ओके। और मैंने हर एक पॉइंट मास को, यहाँ पे एक पॉइंट ले, यहाँ पे एक पॉइंट, ऐसे बहुत सारे पॉइंट मास यहाँ पे हो गया, जिसका मिलके ये मेरा क्या हो रहा है, रिजिड पूरा बना हुआ है, राइट। तो मैंने एज ऑफ नाउ जस्ट एक दो और n नंबर ऑफ उनको मैंने डिनोट किया यूजिंग m। एंड हर एक मास पॉइंट, मतलब ये पॉइंट मासेस अपने सेंटर, मतलब ये होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब ये पॉइंट से मैं सारे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूँ, सर्कुलर मैनर में घुमा रहा हूँ, मतलब ये सारे ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट होंगे, ओके। सो ये सारे ऐसे अलोंग दिस दे विल स्टार्ट रोटेटिंग, ओके। ये क्या होगा, ऐसे रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके, अंडरस्टूड। सो दिस इज लाइक दिस। सो देयरफॉर हर एक का अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या होगा, एक डिस्टेंस होगा। तो m2 के लिए मैंने नाम दिया उसको r2, m1 के लिए मैंने उसका नाम दिया r1, और n नंबर ऑफ ऐसे मासेस हो गए जिसका जो रेडियस होगा दैट विल बी rn, ओके। सो फॉर ऑल पर्टिकुलर द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल विल बी सेम, ओके। अगेन हमेशा याद रखना, जो एंगुलर वेलोसिटी होता है वो सारे पार्टिकल्स का क्या होता है, सेम होता है, ओके। बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट, द एंगल डिवाइडेड बाय द डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। इसका मतलब क्या कि पार्टिकल पास में हो या दूर हो, वो उतना ही एंगल क्रिएट करेगा जितना ये वाला एंगल क्रिएट करेगा, ओके। हेंस द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज सेम फॉर दिस पार्टिकल या दिस पार्टिकल, so therefore angular velocity is also always same, okay। so therefore मैं यहाँ पे उनका लीनियर स्पीड निकाल रहा हूँ, बट लीनियर स्पीड विल बी डिफरेंट, ओके। बिकॉज जितना दूर जाएगा उतना उसका लीनियर स्पीड ज्यादा होगा, जितना पास में रहेगा उतना उसका लीनियर स्पीड कम होगा, ओके। सो देयरफॉर v1 will be equal to r1 into omega, similarly v2 will be equal to, सो मैंने क्या किया, लीनियर स्पीड के इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड का इक्वेशन लिखा। और आपको पता है कि अगर उसको मुझे कन्वर्ट करना है तो मुझे रेडियस से मल्टीप्लाई करना होता है, राइट, विद दिस एंगुलर वेलोसिटी, ओके। सो यहाँ पे मैंने ये कर दिया, ओके। नाउ अभी मुझे क्या करना है कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल मुझे फाइंड आउट करना है। ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर काइनेटिक एनर्जी। सो उसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल, हाफ mv स्क्वायर, ओके। सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विच इज m1, मुझे क्या मिलेगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर, v1 को तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली सेकेंड वाले का m2 v2 स्क्वायर, थर्ड वाले का m1 mn स्क्वायर, राइट। बट यहाँ पे मैंने क्या किया, v1 को पुट किया इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, तो मुझे क्या मिला, m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो आई गॉट दिस इक्वेशन फर्स्ट फॉर फर्स्ट पार्टिकल। सिमिलरली मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सिमिलरली आई विल डू इट फॉर all rest of the particles. So मुझे rotational kinetic energy of the object is sum of individual translational energy. Okay? Because energy is always same, भले ही वो rotational हो या भले ही वो linear हो। So मैंने क्या किया, rotational kinetic energy is always the sum of individual translational kinetic energy. तो मुझे क्या मिला, हाफ m1 v1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस मैंने सबको ऐड कर दिया। तो आफ्टर एडिंग मुझे क्या मिला, सिंपली मैंने ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकाल दिया। आई विल पुल दिस आउट एज इट्स अ कॉमन, और अंदर सबके लिए क्या रखा, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, mn rn स्क्वायर, ओके। एंड मैंने क्या किया, सिंपली ये जो एंटिटीज थी इनको मैंने कंसिडर किया i, let's say for time being I have considered this as a I, okay। So therefore I will be equal to this entity omega square will be equal to half I omega square। so ये क्या है मेरा, rotational kinetic energy, right। so therefore यहाँ पे this is the kinetic energy equation for the rotational, and this is the kinetic energy equation for the translational, okay। तो मुझे यहाँ से ये एक पॉइंट मिला कि I is nothing but equal to, मतलब ये इक्वल टू mi/r square which replaces the mass and angular speed, W replaces the linear speed of rotational kinetic energy, okay।
इसका मतलब क्या कि अगर मैंने उसको ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर काइनेटिक एनर्जी से अगर मैंने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को मैच करने का ट्राई किया, तो एंगुलर स्पीड इज एनालॉगस टू माय लीनियर स्पीड, हाफ हाफ इज द कांस्टेंट, सो बचा मेरा ये आई. So therefore, I is nothing but playing here the role of the mass. Okay. So therefore, I is defined to be rotational inertia or moment of inertia of the object about the given axis of rotation. Okay. Have you understood this? Therefore, I is defined to be the rotational inertia or moment of inertia of the object about the given axis of rotation. तो इसका मतलब क्या कि मेरा जो लीनियर मोशन में जो मास होता है, ओके, वो ही मेरा रोटेशनल मोशन में क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है. ओके, एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज समेशन ऑफ मास इनटू इट्स रेडियस स्क्वायर. ओके, एम आई आर आई स्क्वायर. Always remember this. Okay, so therefore I have defined it कि in terms of inertia, in terms of mass, अगर मैं उसको ट्रांसलेशनल में देख रहा हूँ तो वो मास होगा, बट रोटेशनल में अगर मैं उसको चेक कर रहा हूँ, सो दैट विल बी इक्वल टू माय मोमेंट ऑफ इनर्शिया. देयरफॉर m इज एनालॉगस टू माय मोमेंट ऑफ इनर्शिया. कभी भी ऐसा मत सोचना कि मेरा m इज इक्वल टू i. नो, नेवर, बिकॉज दोनों अलग है. ओके, हम उसको वर्ड यूज करेंगे एनालॉगस. ओके, माय v इज नेवर इक्वल टू ओमेगा, बट यस v इज इक्वल टू r इनटू ओमेगा, करेक्ट. But my m is like that. M is never be equal to I because both are different but analogous to each other. एक है rotational में, एक है translational. Okay. So therefore, from this equation, I can define my moment of inertia is nothing but playing a mass role the way it is playing in translational motion. Okay. So half mv square is equal to is analogous to half I omega square, where m is analogous to I. So this is how we prove it. Okay. Okay. Thank you.